हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई है। आई वॉज इन अ वेरी स्टडी मोड, बट आई रियलाइज़ कि मैं खुद पढ़ते पढ़ते भी ये शेयर कर सकता हूँ। आई विल कीप स्टडिंग, यू विल कीप स्टडिंग विद मी, एंड वील ऑल कीप ग्रोइंग। सो अभी while studying about all the AI trends and all the new technologies, I realized कि कोड लिखना मे बी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी as much as it is important to learn about design and good coding practices, because if you ask your AI agents ki, write the code for this, they'll ask you they'll give you the options. What kind of do you want to follow this format? Do you want to follow, let's say, a builder design pattern? Do you want to follow factory design pattern? Something like that. And then you need to be the one who needs to make that choice. या फिर अगर आप डेटाबेस से क्वेरी करना चाहते हैं या फिर आप डेटाबेस चूज़ करना चाहते हैं, यू कांट कीप asking that question to AI, because you might have seen reels on Instagram, you might have seen it in news. प्रोडक्शन का कोड लिखने लायक अभी AI नहीं हुआ है. I mean, it's still introducing a lot of bugs. So, along with normal AI applications, I'm also going to be uh, sharing a lot about architecture, system design. जो जो मैं पढ़ता जाऊँगा मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा. It might not always be the best solution that I give here, but this is what I know as of now. I'm a junior developer. I have about 1 year of experience working at Cisco. So but feel free to comment it in the comment section, right? That you did not tell this. If you know a better practice, tell it in the comment section. I'll be happy to hear it. तो आज का टॉपिक है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज हाउ टू डिज़ाइन एन एम सी पी. व्हाट आर द गुड डिज़ाइन प्रैक्टिसेस फॉर एन एम सी पी. सो हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक व्हाट्स एम सी पी होस्ट, क्लाइंट, सर्वर, tools, resources, who decides which tool gets called, what happens when an MCP starts, FTDIO versus HTTP and MCP inspector. ये कुछ common terms हैं जो आप हमेशा सुनेंगे, and if you are appearing for an interview as an AI engineer, these are some things you might want to get familiar with. So let's get started. So सबसे पहले एक basic architecture. So a lot of you might already be using MCPs in your day-to-day activities. मैं Atlassian MCP काफ़ी यूज़ करता हूँ ऑफिस में, एंड it gives me the capability to use Jira, Atlassian's Confluence, and it makes it very easy to interact with all these tools. You might have heard about Canva MCP, GitHub MCP. So ये बेसिकली जो चीज़ें आप एज अ ह्यूमन कर सकते हैं उसी को एक AI के थ्रू हम करवा रहे हैं यहाँ पे. दैट्स a very high level what MCP does, and I'm sure at this point आप लोगों ने अगर यूज़ करा है then you are also familiar with that. So MCP के at a very high level the architecture looks something like this. You have a host or a assistant which is basically जो भी आपका ID आप यूज़ करते हैं more or less, like for example if you're using Claude Code or Cursor or maybe even GitHub Copilot. So these are your AI assistants, right? So these are the, यहाँ पे आप एक prompt देते हैं. यहाँ उसके अलावा आप एक क्लाइंट सेटअप करते हैं. फॉर एग्जांपल आप जनरली एक mcp.json फाइल बनाते हैं, तो आप वहाँ पे एक क्लाइंट को सेटअप करेंगे जहाँ पे आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होती है. फॉर एग्जांपल इफ वांट टू रन इट बाय डॉकर, और व्हाट काइंड ऑफ ऑथराइजेशन यू माइट वांट टू प्रोवाइड इट. एक जस्ट फॉर एग्जांपल गिटहब के लिए आई एम यूजिंग अ पैट टोकन, दे माइट बी सम अदर वे टू डू इट, राइट? देन द MCP client will go on talk to the MCP server. एंड सिमिलरली अगर गिटहब का एक MCP क्लाइंट है तो गिटहब का एक MCP सर्वर भी होगा, एंड ये क्लाइंट उस सर्वर से बात करेगा. जैसे एक नॉर्मली आप एक फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेशन करते हैं, सिमिलर टू दैट एक क्लाइंट एक सर्वर है. एंड ये MCP सर्वर विल नाउ गो हेड एंड टॉक टू योर एक्चुअल एप्लीकेशन. सो इसमें हो सकता है वो कुछ API कॉल्स करें, एंड देन इट विल रिटर्न यू द रिस्पॉन्स जैसे कि नॉर्मल एक बैक एंड एप्लीकेशन करती है. So, what exactly MCP server is? It's basically AI friendly adapter. मैं यहाँ पे Jira example ले रहा हूँ because that is something I believe almost everyone would have used. At least the Jira everyone would have used, not the MCP server maybe. So
एक बेटर एक्सप्लेनेशन है, एम सी पी इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट लेट्स ए एप्लीकेशन डिस्कवर एंड यूज़ एक्सटर्नल टूल. सो एम सी पी एक प्रोटोकॉल है, दैट इज़ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल. बेस एक स्टैंडर्ड है ऑन हाउ टू कम्युनिकेट टू एनी एक्सटर्नल सर्विसेज. तो अब इस आपको ये चार चीज़ें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है. एम सी पी सर्वर एक्सपोजेज वॉट इज़ पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक नॉर्मल बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं, आप वहाँ पे एक कुछ ए पी आईज एक्सपोज करते हैं, विच इज़ बेसिकली वॉट योर सर्वर इज केपेबल ऑफ. सिमिलरली एम सी पी सर्वर भी कुछ चीज़ें एक्सपोज करता है जो कि हमें ये बताएंगी वॉट ऑल इज़ पॉसिबल. द ए आई मॉडल डिसाइड्स वॉट इज़ नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, क्रिएट अ जीरा टिकट with severity high and assign it to myself. For example, this is what I want to create this sort of Jira ticket. तो जो LLM फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्सर या क्लॉड या जो भी मेरा AI मॉडल है बेसिकली, वो उसे एनालाइज करेगा. इट विल ड्राफ्ट आउट द स्टेप्स कि मे बी उसे 3 टूल्स को कॉल करना है. वॉट एग्जैक्टली आर टूल्स, उस पर हम अभी बात करेंगे. पर उसे 3 टूल्स को कॉल करना है. वो उसके पास एक लिस्ट होती है, व्हाट द क्लाइंट इज़ केपेबल ऑफ, व्हाट द सर्वर इज़ केपेबल ऑफ. उनमें से एक स्टेप्स ड्राफ्ट आउट करेगा, वो क्लाइंट को बोलेगा, क्लाइंट सर्वर को बोलेगा, एंड सर्वर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम वाई कम्युनिकेटिंग विद द एप्लीकेशन सर्वर. तो क्लाइंट बेसिकली बस एक रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है. तो यस, तो ये एक एग्जांपल है. अगर मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट अ जीरा टिकट फॉर लॉग इन फेलियर, मैंने कर्सर को बोला है. ये कर्सर के पास क्योंकि एम सी पी क्लाइंट सेटअप है, तो उसको पता है कि जीरा या इटलाशन कौन कौन से टूल्स एक्सपोज करता है टू वर्क विद जीरा. तो सिमिलर तो वहाँ से उसे पता चलेगा कि जीरा डॉट क्रिएट इशू में बी, आई डोंट नो इफ दैट्स इट्स द राइट नेम और नॉट, ये जस्ट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है. तो ये कर्सर या वॉट एवर आई डी यू आर यूजिंग, इट विल डिसाइड ओके जीरा डॉट क्रिएट इशू साउंड्स फाइन. यहाँ पे कुछ मेटा डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल किसके लिए किसको असाइन करना है, और मे बी किस प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है, वो दोबारा क्लाइंट को बताएगा. क्लाइंट विल नाउ टेल द एम सी पी सर्वर. सर्वर के पास भी ये टूल होगा, दैट इज़ वाई द क्लाइंट विल ऑल्सो एक्सपोज इट. दे नीड टू बी कंपैटिबल विद ईच अदर. फिर एम सी पी सर्वर की उसी एंड पॉइंट को मे बी यूज़ कर रहा होगा जो एटलाशियन ने नॉर्मली एक जीरा इशू क्रिएट करने के लिए एक्सपोज किया हुआ. तो at a very high level, this is the architecture for any MCP client server. अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है. सो इनिशियलाइजेशन को ऑनेस्टली मैं अगर आपको TCP के थ्री वे हैंडशेक के बारे में बताया, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट आई वुड से. जो भी MCP क्लाइंट है और ये MCP सर्वर है, आई शुड एक्चुअली राइट इट इन अ बेटर ओके, एंड ये MCP सर्वर है. कोई सो MCP क्लाइंट एक इनिशियलाइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा टू द सर्वर, जिसमें कुछ मेटा डेटा होगा. वो हम इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे क्या होता है. फिर MCP सर्वर इसको वापस एक रिस्पॉन्स भेजेगा जिसमें अगेन कुछ मेटा डेटा होगा, एंड फाइनली MCP क्लाइंट एक इनिशियलाइजेशन नोटिफिकेशन भेजेगा. तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है. अब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है नोटिफिकेशन से, तो रिस्पॉन्स बेसिकली सिर्फ यहाँ पे हो रहा है. एंड ये जो इनिशियलाइजेशन के जो पहले 2 स्टेप्स हैं, यहाँ पे एक नेगोशिएशन होती है. फॉर एग्जांपल MCP क्लाइंट उसे बताएगा कि कौन सा वर्जन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. अगर MCP सर्वर वो वर्जन सपोर्ट नहीं करता है तो एंड MCP सर्वर यहाँ से बेसिकली भेजेगा कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है. इफ़ दे आर नॉट कंपैटिबल, इफ दे आर नॉट अलाइंड विद ईच अदर, देन दे कांट वर्क. और MCP सर्वर में भी इस रिस्पॉन्स में ये बता रहा होगा कि what kind of transport system I'm using, or some capabilities it will expose. So ये सब चीज़ें MCP सर्वर क्लाइंट को बताएगा. इफ क्लाइंट फील्स कि नहीं, ये आई कैन नॉट वर्क विद दिस बिकॉज मैं इस तरह ट्यून नहीं हूँ, देन इट वोंट इनिशियलाइज, फिर ये नोटिफिकेशन नहीं जाएगी. बट लेट्स से द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. उसके बाद MCP क्लाइंट एक टूल लिस्ट में यूज के लिए एक कॉल सेंटर. टूल लिस्ट इज वेरी सिमिलर टू वॉट यू वुड से कि वो बेसिकली APIs पूछेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम वॉट ऑल एक्शंस आर यू केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. MCP सर्वर उसे एक टूल लिस्ट रिटर्न करेगा. नाउ जो मेरा होस्ट है या फिर जो यहाँ पे जो भी LLM है, उसको पता होगी क्या क्या टूल्स के अवेलेबल है. सो ये जीरा डॉट क्रिएट इशू यहीं से आ रहा है.
एंड फिर उसके बाद फाइनली जो भी मेरी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे मैं सर्वर को भेजूँगा, सर्वर उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड इट माइट रिटर्न अ रिस्पॉन्स जहाँ पे वो बता रहा हो कि लेट्स से इफ आई वांट टू क्रिएट अ जीरा टिकट, तो फिर वो रिस्पॉन्स में उस जीरा टिकट का नंबर, लिंक, ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है. सो ओके, विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दिस एट द एंड, बट अभी हम सिर्फ उसके बेसिक टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं. फिर एम सी पीज़ को लेके जनरली आप दो चीज़ें सुनोगे, एफ टी डी आई ओ एंड एच टी डी वी. ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट, वो कम्युनिकेशन किस तरह कर रहे हैं, व्हाट्स द ट्रांसपोर्ट मीडियम. सो एफ टी डी आई ओ जनरली तो यही दो होते हैं नॉर्मली, अनलेस यू बिल्डिंग समथिंग कस्टम. बट विद एफ टी डी आई ओ जो ए आई होस्ट होता है वो एक सर्वर के साथ लोकल सब प्रोसेस स्टार्ट करता है, मतलब ये लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल है. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपने सी प्लस प्लस इफ़ यू लर्न तो उसमें आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ करता है. बट बिकॉज ये एक लोकल सब प्रोसेस है, तो जनरली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपको एफ टी डी आई ओ आपकी लोकल डेवलपमेंट या डेस्कटॉप टूल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है. या फिर अगर आप एक सी एल आई की तरह इसको रन करना चाहते हैं देन इट्स मोर यूज़फुल. बट इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ लेट्स से एंटरप्राइज वाइड एंटिटी, लाइक आप हज़ारों लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं, एट दैट पॉइंट मे बी एच टी टी पी इज़ द बेटर वे टू गो. अगर आपका एक जो एम सी बी सर्वर है रिमोट सर्विस है बेसिकली, आप जनरली जब कोई भी ए पी आई एंड पॉइंट लिखते हैं तब भी वहाँ पे एच टी पी रिक्वेस्ट ही यूज़ हो रही होती है, राइट. बिकॉज दैट्स द थिंग, बिकॉज आपका सर्वर जो है वो रिमोट होता है. तो यहाँ पे अगर एक प्रोडक्शन सिस्टम है, कंपनी वाइड इंटीग्रेशन है, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं, एट दैट पॉइंट रेट लिमिटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स, एट दैट पॉइंट यू वुड मोस्ट लाइकली प्रेफर एच टी टी पी. तो जीरा या इटलैशन का जो है वो भी एक एच टी टी पी सर्वर ही यूज़ कर रहा है, या एच टी टी पी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही यूज़ कर रहा है. ओके, तो अब एम सी पी इंस्पेक्टर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन माई ओपिनियन. जब भी आप कोई भी टूल बनाते हो उसकी डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट. डू यू नीड टू मेक श्योर इट्स वर्किंग एग्जैक्टली हाउ यू वांट इट टू बी, एंड स्पेशली विद ए आई जहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत कम होती है, दैट पॉइंट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी टूल है वो सही से परफॉर्म कर रहा है. सो एम सी पी इंस्पेक्टर इज़ वेरी सिमिलर टू पोस्टमैन. अगर आपने पोस्टमैन यूज़ करा है, आप वहाँ पे ए पी आई रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको फिर सर्विस से रिस्पॉन्स आते हैं, देन यू नो कि ओके रिस्पॉन्स बॉडी सही से आ रही है नहीं, या फिर कोई अननेसेसरी एरर तो नहीं आ रहा है. एंड यू कैन ऑल्सो आप अपने सर्वर पे जाके लॉग्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, यू नो कि इट्स ऑल वर्किंग फाइन. सो एम सी पी इंस्पेक्टर इज़ ऑल्सो अ सिमिलर थिंग. यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें, ये एक यू आई टूल होता है जहाँ पे आपको इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्ले ग्राउंड आपके पर्सनल एम सी पी के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं, इनिशियलाइजेशन हुई या नहीं. तो जो जैसे ये इनिशियलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है, ये 3-वे हैंड चेक वाला, यहाँ पर आप इसे एक्चुअली देख सकते हो. जब वो नोटिफिकेशन पब्लिश होती है तो एक्चुअली बताता है कि वो पब्लिश हुई है. या फिर टूल्स आप वहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ पे वो क्या क्या इनपुट ले रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, कि रिस्पॉन्स को इतना टाइम लग रहा है, कोई एरर आ रहा है या नहीं, कोई इंटरमिटेंट एरर आ रहा है नहीं. यू माइट थिंक कि रिस्पॉन्स सही है, बट हो सकता है वो इंटरनली कहीं पे जाके कुछ गलत कॉल कर रहा हो. द एंड रिजल्ट माइट स्टिल बी फाइन, बट यू वांट टू मेक श्योर कि आप उसके एरर्स को मिनिमाइज कर पाओ. तो वहाँ के लिए एम सी पी इंस्पेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स. अब कुछ गुड प्रैक्टिसेस फॉर डिज़ाइनिंग अ जीरा एम सी पी सर्वर. जब भी आप ए पी आईज लिखते हैं, या फिर आज तक हमने जितनी भी ए पी आईज लिखी होंगी, हम नॉर्मली वो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, या फिर हम एक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, एंड वो फ्रंट एंड जनरली कंज्यूम कर लेता है, एंड वी वर ओके विद इट. बट अगर आप ए आई पर्सपेक्टिव से सोचें, सो इट माइट मेक मोर सेंस कि जो भी आप रिटर्न कर रहे हो रिस्पॉन्स, चाहे वो एरर है, चाहे वो सक्सेस है, अगर सक्सेस है तो उसकी क्या बॉडी है, या इनपुट में क्या पैरामीटर्स है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ए आई को क्या चाहिए. अगर आप अपने फ्लोज को ऑटोमेट कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉबेबली वो इनपुट या आउटपुट को और अच्छा करना चाहेंगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू रन इनटू अननेसेसरी एरर्स, बिकॉज ए आई हेल्यूसिनेट भी करता है, ए आई रीज़न भी गलत कर सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप
इनपुट एंड आउटपुट्स पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप उसको डिज़ाइन अच्छे से कर रहे हैं, या फिर आप उसे कितना फ्रीडम देना चाहते हैं, क्या 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 एक्शन परफॉर्म कर सकता है आपका एम सी पी. So for example, keep the MCP server thin. Do not put all business logic. ये तो एक जनरल गुड प्रैक्टिस है. अगर आप कोई आपकी कोई बैक एंड एप्लीकेशन आप उसे एक ही फाइल में नहीं बनाते हैं, आप उसे मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, आप हर अपने लॉजिक को सेपरेट आउट करने का ट्राई करते हैं. एंड MCP सर्वर एक अडाप्टर है आपके बिजनेस लॉजिक पे, आपके एक्चुअल सर्वर पे. सो आप MCP सर्वर पे वो बिजनेस लॉजिक शायद नहीं लाना चाहते हैं. तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल डेफिनेशन, इनपुट वैलिडेशन और इन सब के लिए ये बिल्कुल सही है. बट अगर आपको लेट्स से अब जब आप जीरा टिकट क्रिएट कर रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है कि वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या वो यूज़र एग्जिस्ट करते हैं नहीं, ऐसी चीज़ें प्रॉब्ली MCP सर्वर को हैंडल नहीं करनी चाहिए. एंड वो सही बात भी सही है, बिकॉज वो इन दी एंड आपकी एक्चुअल API है, एक्चुअल फंक्शन को कॉल करने वाले. सो द लॉजिक इज़ इंटैक्ट ओवर देयर. सो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके. ओके, आई मिस्ड अ स्पेस ओवर हियर. सो सेकेंड इज जो भी आप एक्सपोज इंटेंशन बेस्ड टूल्स आर नथिंग बट जो भी आपका MCP करने के केपेबल है, इट्स वेरी सिमिलर टू एन API. बट अगर आप ऐसा कोई टूल एक्सपोज करें विच इज़ jira.call API, डज नॉट मेक सेंस. इट लीव्स टू मच एम्बिग्विटी, एंड ये सब कुछ फिर आपका AI खुद से डिसाइड करें, एंड इट विल मे बी नॉट प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट्स. तो ये एक जनरल API लिखने के लिए भी ट्रू है. जब भी आप API लिखते हैं तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट इशू, इट माइट एक्चुअली बी द रियल API जो इशू को क्रिएट कर रही है. बट यहाँ पे इंटेंट क्लियर है, तो इवन AI विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस रियली मीन्स. सो ट्राई टू एक्सपोज इंटेंशन बेस्ड टूल्स की अब उसका मीनिंग क्या है. फिर सेपरेट रीड एंड राइट टूल्स. वाई इट नीड सेपरेट रीड एंड राइट टूल्स? बिकॉज जब भी आप कोई स्पेशली राइट जब आप करोगे, उस पर आपको एक सेफ गार्ड चाहिए, मतलब आप कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते हो. एंड नॉर्मली आप देखोगे, जैसे कई बार अगर आप कर्सर या क्लाउड कोड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे a lot of the times MCP will ask you, this is what I want to do, can I go ahead, right? So that is really needed because ये एक्चुअल आपके सिस्टम के साथ वहाँ पे जाके एडिट करने वाला है कुछ. रीड पे आपको इतने कॉशंस नहीं चाहिए होते, बिकॉज यू जस्ट फेचिंग सम इन्फॉर्मेशन. बट व्हेन यू आर राइटिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग, दैट इज़ व्हेन यू नीड एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स. तो मेक श्योर आपके पास सेपरेट रीड एंड राइट टूल्स हैं. एंड राइट टूल में यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड ह्यूमन इन द लूप. ह्यूमन इन द लूप बेसिकली मीन्स कि AI ने कुछ करा एंड देन वो ह्यूमन से जाके पूछ है, डज इट लुक गुड टू यू, शुड आई गो अहेड. एंड ये राइट टूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू डोंट वांट टू कमिट समथिंग विच माइट इफेक्ट योर प्रोडक्शन. सो दिस इज़ फाइन. रिटर्न स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स एक्चुअली बोथ. जब भी आपका कुछ भी एरर आएगा, यू नीड टू मेक श्योर कि वो इस तरह का एरर है कि द AI इज़ एबल टू टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 200 ओके या फिर डन रिटर्न करें, दैट इट मेक्स नो सेंस. बट इफ आई एम क्रिएटिंग अ जीरा टिकट, आई नीड टू नो कि उसकी की क्या है, URL क्या है, स्टेटस क्या है, मे बी सम अदर थिंग्स एज वेल. वो किसको असाइंड है, किस प्रोजेक्ट के अंडर है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड ओवर हियर. But you need to provide all that information back to the user. And then you need to design helpful errors. Of course, ये structured outputs में है, but you can't just say invalid request. Why is it an invalid request? Maybe आप missing project की perfect. तो इससे देख के मुझे पता चलेगा कि maybe the tool that I'm trying to call needs the needs the project key. मैं उस ticket को कहाँ पे बना रहा हूँ. And in the next prompt I can just provide that to the as the input, and फिर वो जब भी tool call करेगा उसके input में ये project की जाएगी, and then I might be able to create the Jira ticket. Or for any other, if I'm let's say if I'm using the GitHub MCP and I'm trying to raise a PR, तो वो PR raise हो गया, अब मुझे reviews के लिए भी request करना है. So आई नीड टू प्रोवाइड द नेम्स, राइट. वो किसको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो वो किसी को भी कर देगा, कुछ किसी को भी नहीं करेगा, मतलब वी डोंट नो. सो
try to make the inputs and outputs very clear. ओके सो ये एम सी पी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, हाउ यू वॉट ऑल यू शुड बी डूइंग, वॉट ऑल यू शुड नॉट बी डूइंग टाइप ऑफ थिंग्स. तो उसके आर्किटेक्चर पे इफ़ यू सी, हमने होस्ट क्लाइंट सर्वर के बारे में पढ़ा, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट, केपेबिलिटी नेगोशिएशन, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट. सो होस्ट इनिशियलाइज करते हैं, फिर यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन रिक्वेस्ट जाती है विद कैपेबिलिटीज़, जो उसका मेटाडेटा होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा विद सपोर्टेड कैपेबिलिटीज़. एंड अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन नोटिफिकेशन पब्लिश होती है. अब लेट्स सी यहाँ पर लाइफ साइकिल में होना चाहिए. यस, तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे द क्लाइंट मस्ट इनिशियलाइज दिस फेज by sending an initialize request containing protocol version, capabilities and client implementation information. ये उसके कुछ standards हैं that you always need to provide. And let's say आप ये सब कुछ उस पर provide कर रहे हैं. इस पर हर term का कुछ कुछ मतलब है. We don't want to get into that right now. But you send this to the server. Now the server must respond back with its own capabilities. तो if you see right now यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ के अंदर उसने रूट्स एंड लिस्ट चेंज टू लिखा है. सो अब यहाँ पर उसकी क्लाइंट सर्वर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? वो लॉगिंग प्रोवाइड करता है, वो प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड वो टूल्स अगेन उसके पास भी ये सेम कैपेबिलिटी है. अगर वो सेम कैपेबिलिटी है तभी वो उस पर काम कर पाएगा, अदरवाइज इट वोंट. After successful initialization, the client must send a initialization notification that it to indicate that it is ready to begin normal operations. But the client should not right. But इसका कोई response नहीं आता है basically. That's it. And the client should not send request other than pings before the server has responded to the initialization request. ये हमें पता है, अगर जब तक उसका response नहीं आता तब तक we can't set up the connection, right? Okay. वर्जन नेगोशिएशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इनिशियलाइजेशन रिक्वेस्ट में आपने अपने प्रोटोकॉल का वर्जन बताया, दिस शुड बी द लेटेस्ट वर्जन सपोर्टेड बाय द क्लाइंट. मेक सेंस. इफ द सर्वर सपोर्ट्स द रिक्वेस्टेड प्रोटोकॉल वर्जन इट मस्ट रिस्पॉन्ड विद द सेम वर्जन. अगर सर्वर उस वर्जन को सेटिस्फाई कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज मस्ट रिस्पॉन्ड विद वॉट एवर वर्जन इट सपोर्ट्स. एंड दिस शुड बी द लेटेस्ट वर्जन. अगेन अगर क्लाइंट ये सपोर्ट नहीं कर सकता है देन डिस्कनेक्ट, वी कांट डू एनीथिंग. मेक सेंस. एंड सेकेंड इज कैपेबिलिटी नेगोशिएशन की बेसिकली वो किस चीज़ के केपेबल है. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट एंड सर्वर कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश विद ऑप्शनल प्रोटोकॉल फीचर्स विद अवेलेबल. तो ये सब कुछ उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं. तो हर कैपेबिलिटी का कुछ कुछ मतलब है जो आप एक्चुअली इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. बट इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल वो लॉगिंग प्रोवाइड करते हैं या वो टूल्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर इज़ इट पॉसिबल कि वो इन ड्यूरिंग दैट लाइफ साइकिल इटसेल्फ वो कुछ चीज़ों को चेंज कर पाए. सो ऑल दिस इज़ नेगोशिएटेड इन द इनिशियलाइजेशन फेज इटसेल्फ. एंड इस सब के बाद जब कनेक्शन बन चुका है, हमने कुछ उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म करे होंगे, एंड उसके बाद हम उसे शट डाउन कर सकते हैं. सो आपके पास ऑप्शन आता है इफ़ यू वांट टू शट डाउन द एमसीपी, तो यू कैन टॉगल इट ऑन एंड ऑफ, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उसे ऑन करेंगे तब भी ये सेम प्रोसेस ही स्टार्ट होने वाला. उसके अलावा कुछ टाइम आउट्स भी होते हैं. ऑफकोर्स ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है. यू डोंट वांट टू keep the client waiting जब तक server respond नहीं करता है, because otherwise it will just keep running and exhaust your own resources as well. So कुछ cancellation notification या कुछ particular timeout होना चाहिए. So you don't want to have an endless loop over there. And error handling भी होनी चाहिए of course. अगर version mismatch है, capabilities match नहीं हुई, timeout है, tool support नहीं कर रहा है, whatever the thing is, you need to have a great error handling. Okay, so this is actually more or less what I wanted to talk about today.
मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा था यहाँ पे. आई विल गिव दिस लिंक इन दी description. You can go through it. It more or less talks about the same, taking Jira as an example. And I also designed my own MCP for a personal application. इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा, बिकॉज अभी ये सिस्टम डिज़ाइन है, ये सभी इस सब की ही सीरीज़ है ये. So you can, I'll provide this link in the description as well. You can go through it, you can see how it's working. I'll clean up a lot of code before the next video, but it is still working. So हमने जो जो यहाँ पे अभी बात करी, it more or less supports that. So you can go through this as well. And there is one more thing that I want to show you over here. It is MCP inspector, if I can find it. Perfect. सो MCP इंस्पेक्टर ये डेवलपर टूल्स का पार्ट है. यहाँ पे ये डीबगिंग के बहुत काम आता है. तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी MCP है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई इट आउट. तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन होती है. इस विंडो पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट टाइप क्या है, कमांड क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, रिसोर्सेज, टेम्पलेट्स, यू कैन हैव टूल्स, यू कैन हैव पिंग, सैम्पलिंग, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके क्या क्या अब तक सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया. यू कैन फॉलो इट ऑल द वे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. सो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है. इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई डू हैव इट सेट अप इन माई रिपोजिटरी, बट आई डू नीड टू क्लीन आउट अ लॉट ऑफ द कोड बिफोर आई शो इट टू यू. बट एनी वे, सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है व्हेन यू डिज़ाइनिंग एन MCP टू हैव सम ऑब्जर्वेबिलिटी इनटू हाउ योर MCP इज एग्जैक्टली वर्किंग आउट. Great. If you made it all the way to the end, thank you so much for watching. And again, I might have missed out on a couple of things. I might even have missaid something. कुछ गलत बोल दे तो please, yeah, sorry. But feel free to comment it in the comment section. I'm also learning, and I'm just trying to share my learnings over here. And if you know any better approach, if you know any better practices, let's try to learn together. Thank you so much for watching. See you next time.